مرد میدان میں مرتے ہیں، بنکر میں نہیں۔ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے پاس ہے؟ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مودی سرکار کو للکار۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر جذباتی خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک بے وقوف آدمی نے 4 سال میں دنیا سے تعلقات خراب کیے، معیشت تباہ کر دی۔ ہم نے آہستہ آہستہ عالمی برادری سے تعلقات ٹھیک کیے۔ MS ادھر ہی ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر وہ جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ بنکر میں چلیں۔ میں نے کہا میدان میں مرتے ہیں، یہاں نہیں مرتے بنکروں میں بیٹھ کے۔ یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی، ہم گولیاں ماریں گے۔ اتنا ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے وانیا دی، کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی۔ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے؟ اگر دوبارہ کسی میلی آنکھ سے کسی ملک نے بھی دیکھا پاکستان کی طرف تو یاد رکھو کہ یہاں آصف زرداری بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پچاٹ ماریں گے، جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا۔ ایک بیوقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے تھے، پاکستان کی اکانومی تباہ کرا دی تھی۔ ابھی ہم نے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات دوبارہ ٹھیک کیے ہیں۔ سیاسی انتہا پسندی کو صرف مفاہمت کا بادشاہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے آج نہیں تو کل مفاہمت کرنا ہی ہوگی۔ بلاول بھٹو کا گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، حکومت پر بھی دبے لفظوں میں تنقید کرتے ہوئے کہا، مہنگائی کے بوجھ تلے دبا عام آدمی معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے نہیں مانتا۔ ٹیکس اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی ذمہ داری صوبوں کو دی جائے۔ سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے آج نہیں تو کل ہمیں فہمت کی ضرورت ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب۔ یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں، میں آپ کو کہتا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کرے، آپ جو ہمارا ڈیفنس بیسز ہے ان پہ حملہ کرے، تو کیا آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ سیاسی بحران، معاشی بحران ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہا ہے؟ بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے، ہم FBR سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔ یہ جو ہیپکو جیسے ادارے ہیں، یہ بوجھ وفاق کو اپنے کندھے سے اتارنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری بھی آپ صوبوں کو دے، ہم وفاق سے بہتر پرفارم کریں گے۔ جن جنگی جہازوں نے بھارت کے طیارے گرائے وہ صدر آصف علی زرداری نے منگوائے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ، کہا بھارت آج تک پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کو ہضم نہیں کر سکا، ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے۔ پاکستان کا جو آپ کا سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ مئی کے مہینے میں ہمارا افواج نے پاکستان بحیثیت قوم نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں۔ فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ جہاں وزیر اعظم بھارت کا تقریریں کرتا تھا، پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس مئی کے چند دنوں کے رات کے بعد وہ بھارت کا وزیر اعظم غائب ہو چکا۔ اور یہ صدر زرداری ہی تھا جس نے چین سے وہ ہوائی جہاز منگوائے تھے جنہوں نے بھارت
भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत मुस्लिम दुनिया की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत को 18 बरस बीत गए। गड़ी खुदा बख्श में जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द भी गड़ी खुदा बख्श पहुंचा। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी स्टेज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे रहे। उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते रहे। बीबी के यौम शहादत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पैगाम जारी किया। शहीद मोहतरमा को खराज अकीदत पेश किया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात को मशअल राह करार दिया। कानून की हुक्मरानी का सफर आगे बढ़ाने का अज़्म दोहराया। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहे तो हुकूमत तैयार है। जमहूरियत बातचीत से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। सरदार अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की एक बार फिर पेशकश। कहा, बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते, किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई के जो बानी हैं सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करें, जो कि बानी पीटीआई इस वक्त जो है अपनी मुलाकातों के थ्रू इस किस्म की मैसेजिंग करते हैं। हम हमेशा से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं, अब भी है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। बोले, पंजाब हुकूमत का रवैया कभी नहीं भूलूंगा। मुखालिफिन खैबर पख्तूनख्वा में आकर जलसा करें, गाड़ियां भी दूंगा, स्टेज भी सजा कर दूंगा, बताऊंगा इस मनसब की इज्जत कैसे होती है। कल इतवार का दिन है 6 बजे मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा अनाउंस करता हूँ और ये अपने लिए ग्राउंड पसंद करें। कल का दिन अगर नज़दीक है तो कल का दिन भी ले लें। अगले हफ्ते को ये अनाउंस करें मैं खैबर पख्तूनख्वा में इनके लिए स्टेज भी सजाऊंगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते लोगों को, ट्रांसपोर्ट भी मैं दूंगा। ये खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें और मैं लाहौर में जलसा करूँगा। हमारा आईन हमें इजाजत देता है राइट टू असेंबली कि हम जलसा भी करें और पुरअमन एहतजाज भी करें, लेकिन यहाँ पर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ मुलाकातों के लिए आ रहा है और हमारे 1000 से ज्यादा कारकुन इन्होंने उठा लिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब में खुशामदीद कहा। उनके साथ आने वालों ने जो कुछ कहा वो अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर मुतालिका अफराद को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोकने पर तूफान बदतमीजी मचाया गया। जो पंजाब असम्बली के अंदर हक्कम पेल हुई, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर जो लिस्ट उन्होंने दी थी उस लिस्ट के मुताबिक एक बावकार तरीके से वो भी एंटर होते, असम्बली स्टाफ को भी तकलीफ ना होती, तो लेकिन जब धक्कम पेल है और बहुत सारे इररेलेवेंट लोग घुसे लिस्ट के अलावा, जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लिबर्टी के अंदर हाल होता है ट्रैफिक का, उसका अगर वो चलने दिया जाता और चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँच ही ना पाते ट्रैफिक की वजह से, पैदल तो आने से किसी को किसी ने नहीं रोका था, तो इनकलाब जो है वो पैदल भी आ सकता था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि भारत ने नूर खान बेस पर हमला करके सुपर गलती की थी। 10 मई को जो हमने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत के 7 तैयारे गिराए, इबरतनाक शिकस्त दी। जंग बंदी के लिए अमरीका से दरख्वास्त भी भारत ने की थी। गजा के लिए आलमी फोर्स में शामिल होना है या नहीं, पाकिस्तान सोच समझ कर फैसला करेगा। से बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, एयर बैटल 7 तो गिराए गए। नल्ला फाइडी इंटेंशन इंडस वाटर के हवाले से गालबन थी, और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर फिर अटैक कर दिया। तो ये उनकी सुपर गलती। 10 मई की सुबह जो फैसला इम्प्लीमेंट हुआ, करीबन 7:45 तक ख़त्म हो चुका था और
जो भी हम एक्शन ले रहे थे टाइम गैप के साथ उसको पब्लिक कर रहे थे ग्लोबल। किसी को नहीं कहा कि हमारी तो सुलह सफाई करवा दे। 8:17 के करीब आई रिसीव द कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी रूबियो ऑफ यूएस के इंडिया इज रेडी टू सीज फायर, आर यू विलिंग? मैंने कहा वी नेवर वांटेड टू गो ऑन वॉर, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उतना किया जितना कि हमारे साथ अटेम्प्ट हुई, वरना इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता था। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज देयर जॉब। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू ज्वाइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग, डीवेपनाइजिंग हमास। आगे बढ़ रहे आपको बताएं कि यूरोप जाकर मुस्तकबिल संवारने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डंकी लगाकर नहीं, बाकायदा वर्क वीजे पर कानूनी तरीके से इटली जाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान इटली से 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाब हो चुका है। इस पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखें, पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके लिए यूरोप इटली के दरवाजे खुल गए हैं। इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए 10,500 मुलाजमतों का कोटा अलाट किया है। 3 सालों में हर साल 3,500 पाकिस्तानी वर्कर्स सीजनल और नॉन सीजनल बुनियादों पर इटली जा सकेंगे, जिसमें 1,500 सीजनल और 2,000 नॉन सीजनल कोटा शामिल है। इटली की जानिब से पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा दिया गया है। इन बहुत शोबों में उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान इटली से 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाब हो चुका है। इस पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखें, पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके लिए यूरोप इटली के दरवाजे खुल गए हैं। इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए 10,500 मुलाजमतों का कोटा अलाट किया है। 3 सालों में हर साल 3,500 पाकिस्तानी वर्कर्स सीजनल और नॉन सीजनल बुनियादों पर इटली जा सकेंगे, जिसमें 1,500 सीजनल और 2,000 नॉन सीजनल कोटा शामिल है। इटली की जानिब से पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा दिया गया है। इन बहुत शोबों में